Good afternoon. Everyone had a good lunch? सब लोगों ने अच्छे से खाया. Okay, wonderful. So shall we just start with a word of prayer? क्या हम प्रार्थना के साथ शुरू करें? Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for bringing us to another day. एक और दिन की ओर हमें लेकर आए, इसलिए धन्यवाद. We pray that you will continue to open our hearts and our minds हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदयों को खोलते रहें प्रभु परमेश्वर, so that we can hear from you. ताकि हम आपसे सुन सकें. May we be willing आप अपने इच्छानुसार to take away all that is not of you जो कुछ आपका नहीं है उसको निकालने के लिए, and to take on only that which is from you. और जो कुछ आपसे है वही होने पाए. Thank you. May we pay attention today. प्रभु जी धन्यवाद. और हम आप इस आज के दिन ध्यान पूर्वक रहें, May we stay awake हम जगे रहें and we stay interactive. और एक दूसरे से बातचीत करते हुए. In Jesus' name, amen. यीशु मसीह के नाम से आमीन. I forgot to do something yesterday, कल कुछ भूल गए थे करने के लिए. which is to thank Brother Biju. Come on. ताकि मैं भाई बिजू को धन्यवाद दे सकूं. It's not a very easy job to translate. आसान काम नहीं है अनुवाद करना. So give him a good talia. Thank you. God bless you. Okay, so let's do a quick 5-minute recap. हम जो है शीघ्र जो है 5 मिनट में कल जो पढ़े थे उसका जो थोड़ा शीर्षक देखें. Okay, so should I call out names or will you put your hands up? मैं नाम बुला के उठाऊं बोलूं कि आप लोग अपने आप हाथ उठाएंगे? Apne aap. Okay, so what did we do in the first chapter yesterday? और कल जो है पहले अध्याय में हमने क्या किया था? Yes. Foundation of marriage. Okay. शादी का नींव. God designed marriage. Very good. परमेश्वर ने जो डिजाइन किया हुआ मैरिज शादी है. Marriage should be honored. Marriage is a good thing. Very good. Or it's a union of two. Very good. It's a solemn promise. Yes. Huh? Okay. It is love till death. Then that's all. उतना ही. Okay. Marriage is between one man and one woman. Very good. Okay. What about the second chapter? दूसरा अध्याय. It was preparation. तैयारी. 7 areas of preparation. 7 अंक जो तैयारी के शादी करने से पहले जो तैयारी किया जाता है. So give me 2 from here, 2 from here, 3 from there. मेरे को 2 इस भाग से जवाब दीजिएगा, 2 मध्य भाग से और 3 जो है दाहिने भाग से. 2 मेरे The boys at the back. पीछे जो लड़के बैठे हुए हैं वो लोग 2 जवाब दें. यहाँ पर 2 और मेरे दाहिने हमारे दाहिने तरफ जो 3 जवाब. दूसरा अध्याय जो तैयारी था शादी विवाह करने के समय, उसमें से क्या हमने 7 अंक सीखे थे? तो 7. Becoming the best. Okay. All right. पीछे थोड़ा और जोर से. Emotional health. Okay. Emotional health. All right. Here. यहाँ पे Personal management. I personal think that's what we management. said. Okay. What all do you need to do in personal management? Or क्या क्या करना व्यक्तिगत है? प्रबंध में क्या क्या करना है, उसमें क्या क्या करना चाहिए? Finance.
Okay, finance. very good. Finance. Then और व्यक्तिगत प्रबंधन, time management. Very good. Then घर का काम करना चाहिए. Very good. Okay. And one more. और एक. Career. Very good. Career. All पेशा. right. Okay. What's the fourth one? चौथा Relationships. Okay. And in that, what all do you get prepared for? Communication. Very good. बातचीत, In-laws, how you deal with in-laws. And ससुराल के लोगों और रिश्तेदारों से कैसे one more. संबंध बनाए रखें, Roles. Roles. Very good. भूमिकाएं. Okay. Last three. तीन. Ladies. बहनें, संबंध कौशल. See now it tries. हिंदी कर करके इंग्लिश में नहीं हो रहा अब. That's relationship skills, they said. relationship skills. वो हुआ है. Relationship skills. They said. हो गया, उनने कहा, कह दिया. Fourth they said. हाँ, हो गया. वार्तालाप. Communication. All that is over. वो सब हो गया. सेवकाई. 4 हो गया है, अब से 3 बताएं। बाकी है. 4 पॉइंट हो चुके हैं, अब 3 बाकी है. आखिरी के 3. Overcoming the past experiences. पुराने Okay. अनुभवों में से विजय पाना. Good. Then इस साइड sexual purity. Very good. Spiritual maturity in maturity. Christian calling. Very good. Excellent. All right. The last one, third chapter. तीसरा अध्याय. How many of you wrote your list? और कितनों ने सूची बना लिया तीसरे अध्याय का? How many wrote your list? Only 2 young ladies? 2 जवान लड़कियों ने सिर्फ लिखा. Okay, लिस्ट one कल जो more. सूची बोला था लिखने के लिए, नहीं लिखा? No? Wrote? Okay. Boys? इस साइड से माइंड में है. मैम ने माइंड में नहीं लिखने बोला था, मैम ने बोला था कि किताब में लिखना है. Okay. What else did we learn yesterday? Other than expectations for who you want to marry, what else did we learn yesterday? कल और क्या क्या बातें हमने सीखा था. उम्मीद क्या करना चाहिए कि शादी करने से पहले, उसके साथ हमने क्या सीखा था. Capability, Compatibility, match. How do you, okay, how can you make a decision who to marry? So we said to be able to match in the area of physical, emotional, intellectual, spiritual, and life's calling. और बुलाहट के विषय में, आत्मिक विषय में, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, भावनात्मक रीति से, सब रीति से जो है एक समान होना. Yes? एक जैसा होना. And one more, what are other things? और Warning signs. Okay, warning signs. चेतावनी के All right. लक्षण. Then? जीवन की call of life, life's call. Life's call. Okay. All right. In the ministry, the call together. Okay, I mean, all maybe right. that is. We learned about singleness. अविवाहित के विषय में हमने सीखा था. Yes. अकेला रहना. Yes. We learned about, is there only one person in our, one appointed person that we should marry or not? We spoke about that also yesterday. हमने कल बात किया था कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसके लिए जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए बनाकर रखा है. We learned that? हमने सीखा था. Okay. All right. Okay. Let's go to chapter 4 today. आज चौथा पाठ की ओर हम लोग जाएंगे. And this chapter is about understanding the roles of a husband and a wife. एक पति और पत्नी के जो भूमिकाएं हैं परिवार में, उसको समझेंगे आज. So one way to become one in marriage is to fulfill the roles that God has
for you in marriage. और एक तरीके से अपने पारिवारिक अपने शादीशुदा जीवन को पूर्ण बनाना है कि अपना जो भूमिका है वो उसको समझ जाना। So the Bible gives specific instructions for the roles of a husband and the role of a wife. परमेश्वर का वचन जो है स्पष्ट रूप से बताता है एक पति का या एक पत्नी का भूमिका परिवार के अंदर क्या है। So it gives you an understanding of the heart of God. और वो जो है परमेश्वर के हृदय को समझने में मौका देता है। It lets us see what God expects that the role should be of a husband and a role should be of a wife. वो दिखाता है कि क्या उम्मीद रखा जाता है कि एक पति का या पत्नी का भूमिका होना है। But before we get into the roles, we must understand one basic truth in God's word. और इस भूमिका के विषय में जानने से पहले एक महत्वपूर्ण जो तत्व है परमेश्वर के वचन में उसको जानना है। In the eyes of God, both the husband and the wife are equals. और परमेश्वर के नजरिए में पति और पत्नी एक समान है। And the Bible says they are joint heirs before God in every gift and grace. और उसमें परमेश्वर का वचन कहता है वो समान तुल्याधिकारी वारिस होते हैं, समान वारिस होते हैं जो कुछ परमेश्वर उनके लिए देता है। So can someone read 1 Peter chapter 3 verse 7? क्या कोई पढ़ सकता है पहला पत्रोस 3:7? वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। Okay, so this means that neither the husband or the wife should think that they are better than the other. और इसमें से ये सारांश निकलता है कि ना कि पति ना कि पत्नी ऐसा सोचना चाहिए कि हम दूसरे से बेहतर हैं। Okay, God treats each person, a husband, a wife, as equal, and we should also treat each other as equals. और परमेश्वर जो है दोनों पति और पत्नी को तुल्य देखते हैं और हम भी एक दूसरे को तुल्य ही देखना है। Another truth we need to understand, और दूसरी एक सच्चाई जो हमें समझने की जरूरत है, that the husband and the wife depend on each other. और पति और पत्नी जो है एक दूसरे पर आश्रित हैं। We will read that in 1 Corinthians chapter 11 verses 11 to 12. वो देखेंगे पहला कुरिन्थियों 11:11 और 12 से। पढ़िए। तो भी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के हैं, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। Okay, so the joy of marriage is when the husband depends on the wife and the wife depends on the husband. शादीशुदा जीवन का आनंद तब होता है जब पत्नी पति के ऊपर निर्भर होती है और पत्नी पति के ऊपर निर्भर होती है और पति पत्नी के ऊपर निर्भर होती है। Okay, so what are the truth we should establish in marriage? दो मुख्य बातें, महत्वपूर्ण बातें क्या हैं शादी में? इक्वालिटी एंड इंडिपेंडेंस। Decide what are the two truths? दो सच्चाई क्या है परमेश्वर के वचन में जो महत्वपूर्ण है शादीशुदा जीवन में? साथ रहना चाहिए। ना जो पढ़ाया अभी जो हम हाँ, what did we learn just now? अब भी जो सीखा, They are equals and they should depend one to another. वो तुल्य है, एक समान है और वो एक दूसरे पर आश्रित होना चाहिए। Now this sometimes can be very difficult understanding for men. ये जो समझ है कभी कभी आदमियों के संबंध में बहुत कठिन विषय है। Because sometimes when the culture that we come from, we are taught that women are not equals to us. और जो संस्कृति में से हम आते हैं वो संस्कृति हमें सिखाता है कि स्त्री जो है पुरुष के
तुल्य नहीं है, but we align ourselves by the word of God. लेकिन हम जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार देखते हैं। And it is a good thing to depend and to help and get support from your wife also. और ये बहुत ही भली बात है कि अपने पत्नी से सहायता और प्रोत्साहन को प्राप्त करें। So all the men over here should be a generation who treats their wives as equal to themselves. और यहाँ पे जितने बैठे आदमी लोग हैं वो ऐसी एक पीढ़ी होना है जो अपने पत्नी को एक समान, अपने समान तुल्य मानते हों। And the women should be a generation who are willing to respect and honor their husbands. और स्त्री जो है यहाँ पर उनका ये होना चाहिए कि वो लोग अपने पति को सम्मान दें और उनको अच्छे से उनके साथ व्यवहार करें। Amen. Amen. Okay, all right. So let's look at the different roles of a husband and a wife. We'll start with the husband first. और अलग अलग जो भूमिकाएं हैं पति और पत्नी का वो देखेंगे। पहले पति का। Now you find a lot of the instructions of roles in many verses in the Bible. और कई जो निर्देश हैं दिए गए हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार In Ephesians chapter 5, एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय, Colossians chapter 3, कोलोसियों की पत्री 3रा अध्याय and 1 Peter chapter 3. और पहला पत्रोस तो 3रा अध्याय। So we won't go through all the verses, but I will highlight a few verses. और ये सारे जो परमेश्वर के वचन है उसको हम गहराई से नहीं देखेंगे लेकिन कुछ बातों पर टिप्पणियां करेंगे। So let's read Ephesians chapter 5 verse 23. और पढ़ेंगे एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय 23वां पद। एफेसियों 5:23 बाइबल में से निकाल लें और पढ़ लें। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। Thank you. I'd like you to read verse 25 also. 25 भी पढ़ दें उसी अध्याय का। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। Read verse 31. 31। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह दोनों एक तन होंगे। Okay. You can turn to 1 Peter chapter 3 and read verse 7. पहला पत्रस 3:7 थोड़ा पढ़ें। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। Okay, amen. Now, let's remember that God will give us the power to live out these roles if you are willing to do so. अगर आप ये भूमिकाओं को करने के लिए तैयार हो तो परमेश्वर आपको उसमें सामर्थ्य देगा। Okay, so God puts this desire inside of you to follow what He has instructed. और परमेश्वर आपके अंदर इच्छा डालेगा कि वो उसने जो निर्देश दिए हैं उसके पीछे हो सके। Okay, so let's look at the first role, which is love. पहला जो भूमिका है पति का वो देखेंगे, वो है प्रेम। Okay, now all the men, how are you supposed to love your wives? और सारे आदमियों से ये सवाल है, आप किस प्रकार से अपने पत्नियों से प्रेम करना चाहिए? Okay, tell me, how is that? ठीक है, कैसे? विवरण कीजिए उसको। Explain it for me. विवरण कीजिए You're उसको। right. Just आप- like Christ loves the church, but how? सही है कि परमेश्वर ने जैसे कलीसिया से प्रेम किया, तो लेकिन कैसे? Help her in kitchen. Okay. रसोई में सहायता करें।
रसोई घर में, रसोई में नहीं, रसोई घर में खाना बनाने के लिए सहायता कीजिए। Khana banana. Okay. Then just like you love yourself. अपने आप से जिस प्रकार से आप प्रेम करते हैं। What did Christ do to the church? मसीह ने कलीसिया के प्रति क्या किया? अनकंडीशनल, Unconditional love. So सीमा रहित प्रेम। he left all of his glory and came down to sacrifice his life for the church. और वो उस यीशु मसीह ने अपने सारे महिमा को त्याग कर कलीसिया के लिए अपने आप को बलिदान देने के लिए आया। Okay, men, give me an example how you will love your wife like that. और आदमी लोग एक उदाहरण दीजिए कि उस प्रकार से आप कैसे अपने पत्नी से प्रेम करेंगे। Very easy to say, no, just like Christ loves the church. आसान है बोलना कि मसीह ने जैसे कलीसिया से प्रेम किया, बोलने के लिए बहुत आसान है ना? Huh? लाउडर, ऊंचा आवाज बोले। Taking care. कैसे? Give me an example. उदाहरण दीजिए। ठीक है, वो सब अंक है, लेकिन उसका उदाहरण दीजिए कैसे। When she's not well, taking care of her. Okay. जब वो स्वस्थ नहीं है तो उसका ध्यान देना। Okay, sacrificing something that does not please the wife. Okay. अपने कुछ स्वभाव को त्याग देना जो उसको पसंद ना हो। Now imagine you finished work, came back at 6 o'clock. आप कल्पना कीजिए कि आपने 6 बजे अपना काम खत्म करके घर को वापस आए हैं। And you just want to sit and relax and watch YouTube shorts. और आप जस्ट बैठ के आराम करना चाहते हैं और YouTube शॉर्ट्स को देखना चाहते हैं। And your wife also comes back from work. और आपकी पत्नी भी घर में काम के बाद आती है। And she says, please make dinner today. और वो कहती है कि कृपया करके आज आप डिनर बना दीजिए। Make it. बनाएंगे? नहीं, वो भविष्य के लिए क्वेश्चन है। अभी शादीशुदा के लिए क्वेश्चन है, शादीशुदा जो नहीं है उनके लिए भविष्य के लिए क्वेश्चन है। क्या होने से? Okay. So I'll ask you a question. Okay. Jesus forgives one-time sin forgives your sin once. Okay, he's forgiven once. Should he forgive you 5 times, 10 times? और यीशु मसीह, ध्यान से सुनिएगा, अपने में बात मत कीजिएगा। यीशु मसीह ने, हाँ, यीशु मसीह ने एक बार आपके पाप को क्षमा कर दिया। क्या उसका मतलब नहीं कि आप बार बार करें तो 5 बार भी आपको क्षमा करे? एक ही गलती बार बार नहीं करते। अच्छा, खाना बनाना गलती है? प्रेम में कभी कभी sometimes it happens. That is what is sacrificial love. उसको ही कहते हैं त्याग पूर्वक प्रेम। That you will be willing to give up what you like 10 times, 20 times, 100 times so that you can serve your wife. और एक बार, 10 बार, 100, 30 बार, 100 बार त्याग देना जो आपकी पत्नी को भला लगे। Very hard, no? बहुत कठिन है ना? Okay. So the kind of love, now for all of you husbands or all you boys who are going to become husbands,
That is what God expects. That's the kind of love God expects from you. और जो वैवाहिक है और जो शादी करने वाले हैं, उन सब के लिए जो आदमी लोग हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर जो है आपसे उम्मीद रखता है। So it's that kind of love which does not expect anything in return. और ये वो प्रेम है जो पलटकर कोई भी उम्मीद नहीं रखता। That if you cook one day, then she will be nice to you the next day. अगर आपने एक दिन खाना बना दिया तो एक दिन वो आपके साथ अच्छा रहेगी। Okay? All right. Let's look at the second role. दूसरा भूमिका देखेंगे। You are called to be the leader of your house. और आप अपने घर के अगुए होने के लिए बुलाए गए हैं। Now, your leadership is not because of your ability or your strength. आपकी ताकत या आपकी क्षमता के कारण नहीं है आप अगुए हो, But because God has placed you as a leader there. इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको आपके घर में एक अगुए का भूमिका दिया हुआ है। In God's rule of his kingdom, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के नियम अनुसार God has placed the husband as the head and authority of the home. और पति को जो है घर का सिर के रूप में और अधिकार के रूप में रखा हुआ है। Okay, how many kinds of leaders have you seen? कितने प्रकार के अगुओं को आपने देखा है? कितने प्रकार के अगुवाई करने वाले लोगों को आपने देखा है? What kind of leaders have you seen? और किस प्रकार के अगुवे करने वालों को आपने देखा है? दो सवाल। Huh? Okay, I'm not talking about worship leader, pastor. I'm saying the पारिवारिक। not the parivar. I'm दासत्व मनोभावना वाले एक अगुवा या मुख्य रूप से खड़े होने वाला डिक्टेटर, जो अधिकार के साथ खड़े होने वाला अगुवा, उस प्रकार से वैसे वाले अगुवों कितनों को देखा है? जैसे एक दास के मनोभावना वाला कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो, वैसे एक अगुवा, या फिर अधिकार के साथ मैं ऊपर हूं करके खड़े होने वाला। Let's look at go back to school. How were your principals? What kind of leaders were your principals? आप अपने स्कूल में वापस जाएं तो आपका जो प्रिंसिपल था वो कैसे था? Disciplined, impartial leader. Okay. अनुशासित और भेदभाव करने वाला, एक नहीं करने वाला, इम्पार्शियल यू सेड, ओके, जो भेदभाव ना करने वाला एक Okay. एक लीडर अगुआ। Who else have had different kinds of leaders? और दूसरे लोग Loving and caring type of leaders. Then प्रेम और ध्यान रखने वाला। no partiality. Someone said that. वहां पे बोल दिया। Okay. These are all very good leaders you've seen. No one has seen bad leaders. ये सब तो अच्छे अगुए हैं। क्या आपने कोई खराबी वाला अगुआ नहीं देखा? Yeah. So what are they? वो क्या है? कड़क, स्ट्रिक्ट, Very strict. अनुशासित। Autocrats. I don't know how they say I know. autocrat. मतलब अपने में ही सीमित रहने वाला। Someone who dominates. Yes. अधिकार जताने वाला। Right? So you will see many leaders, but what kind of a leader was Christ? आप कई प्रकार के अगुवाई करने वाले के लोगों को देखेंगे, लेकिन यीशु मसीह किस प्रकार का अगुवाई करने वाला था? Compassion. Okay, he was a servant leader. वो जो है एक दास के समान का एक लीडर था, That he served others by his leadership. कि उसने दूसरों की सेवा किया अपने अगुवाई करने के तरीके से। And that is what, as husbands, you are called to do, to be a servant leader. और इसी प्रकार से पतियों को परमेश्वर ने बुलाहट दिया है कि एक सेवा के मनोभावना के साथ करें। Which means, as a husband, you take the role of you take the responsibility
of your family. और उसका मतलब यह है कि एक पति होने के नाते आप अपने घर का जिम्मेवारी लें, So that you make the right decisions, keeping everyone in the household in mind. और आप सही निर्णय लें, इसको मन में रखते, पूरे परिवार के सदस्यों को अपने मन में रखते हुए। A servant leader is also willing to take the opinions of other people in the house. और एक दास मनोभावना वाला जो अगुआ होता है, वो दूसरे लोगों का भी अभिप्राय को सुनने के लिए तैयार रहता है। So a servant leader is also a submissive leader. और एक दास मनोभाव रखने वाला अगुआ जो है, वो एक दास भी है। Okay? ठीक है? Right. The other roles for a husband is to encourage and nourish and cherish their wives. और दूसरा जो भूमिका है पतियों का, वो है पोषित करना और Encourage. प्रोत्साहित करना और संजोना। Okay. Now, how do you cherish your wife? आप किस प्रकार से अपने पत्नी को संजो सकते हैं? How many of you have pets at home? कितने लोगों के घर में पेट्स हैं? Okay, a few. पालतू जानवर। So how do you cherish your pet? आप अपने पालतू जानवर किस प्रकार से आप उसके साथ लालन पोषण करते हैं? करेक्ट। You pamper, you pet it, you buy it toys, you give it food. आप खाना देते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसको गले लगाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसके लिए टॉयज खरीदते हैं। And you keep it safe from harm. और सारे कठिनाइयों से, सारे परेशानियों से उसको बचा कर रखते हैं। Right? ठीक है? So cherishing your wife is to really make her feel important and loved. और संजोना का मतलब है कि उसको ध्यान से रखना, प्रेम के साथ रखना, उसको सुरक्षित रखना। The other roles is to honor your wife. और आगे और जो भूमिका है पति का, वो है पत्नी का सम्मान करें। How do you honor? किस प्रकार से पत्नी का सम्मान कर सकते हैं? God has given even your wives some gifts and some talents, and when you appreciate and respect those talents, you are honoring your wife. आपके पत्नी को भी परमेश्वर ने कुछ वरदान, कुछ कार्य दिए, गुण दिए हैं। जब आप उसको प्रशंसनीय रीति से करेंगे, उसका मतलब है आप उसका सम्मान कर रहे हैं। Okay, so boys, men, tell me what are the different roles that God has given you as a husband. और आप जो हैं यहाँ पर बैठे हुए लड़के जो हैं, बताएं कि आपके अंदर परमेश्वर ने क्या गुण दिए हैं, वरदान दिए हैं। Preaching, To preach. to preach. Ayo. परिवार के अंदर की बात चल रहा है, परिवार पत्नी से प्रचार मत करना। Okay, be a leader, a servant leader. Good. Then be a loving, kind person. That without having a role, you should be loving, kind person. वो एक भूमिका के बिना ही आपके अंदर वो स्वभाव होना चाहिए। What else? We just अभी सीखा। तो सीखा है ना? Honor your wife. Okay. Then sorry? To be partnership in the work. To partner in the work. Okay. अभी हमने सीखा था, कुछ अंक यहाँ पर बोले गए थे। Look into your books. आपके किताब में देखिए 6 अंक बोल चुके हैं। 6 things are there. 6 अंक बोले हैं। आप पढ़ाइए, सब पढ़िए। Yeah, can you just repeat? वो पहला है प्रेम, पोषण करना, अगुवाई करना, संजोना, जानना, सम्मान देना। Okay, can all the boys repeat that once again, brother?
और क्या जो लड़के हैं उसको एक और बार मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं? प्रेम, पोषण, संजोना, अगुवाई करना, जानना, सम्मान देना। कभी नहीं भूलना. उसको उसको दोहराने नहीं बोला था, उसको बोला था कि कभी मत भूलना अपने जीवन में। Okay. All right. Let's look at the wives' roles. आइए हम आगे बढ़ते हुए पत्नी का जो भूमिका है उसकी ओर जाएंगे। So again, in the same portion, there are different, Paul in Ephesians talks about different roles for a wife. और एफेसियों की पत्री में पौलुस जो है पत्नी का जो विभिन्न भूमिकाएं हैं उसके विषय में कहता है। So let's read Ephesians chapter 5 verse 22. एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय 22 पढ़े। एफेसियों 5 का 22। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। Verse 24. 24। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। Okay, verse 33. 33। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। Okay, Colossians chapter 3 verse 18. कलोसियों 3 का 18। कलोसियों 3 का 18। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति का अधीन रहो। Okay, and First Peter chapter 3 verse 1. पहला पत्रोस 3 का 1। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो। Okay, so ladies, महिलाएं, what is the first? How do you love your husbands? प्रेम तो है, तो आप प्रेम कैसे करेंगे अपने पतियों के प्रति? Exactly as he is. Accept him as he is. Accept him. You said accept? Accept, you said. Okay. Accept him as he is. Okay. जैसा वो है उसको समझ लें, So स्वीकार कर लें। you love him without wanting any change in him. किसी भी उसके अंदर किसी भी एक बदलाहट को उम्मीद ना रखते हुए उसके साथ प्रेम करना। So the word that Paul uses for love for ladies is the love of a friend to their husbands. और जो पौलुस जब एक पत्नी के तरफ से पति की ओर प्रेम के विषय में बोलता है, वो एक मित्र का प्रेम के विषय में बोलता है। So you accept him not because of what he deserves, but because of who he is. और वो क्या उसको क्या मूल्य होना चाहिए उसके अनुसार नहीं, लेकिन वो कौन है उसके अनुसार प्रेम करें। So you're accepting, you're loving your husband because of the worth that God has put in him. और परमेश्वर ने जो उसके अंदर डाले हुए गुण है उसके अनुसार उसकी ओर प्रेम करना। So even a wife loves sacrificially. और पत्नियां भी जो है त्याग पूर्वक प्रेम करना है। Where you keep your husband as priority, keep him as focus, do things that are needed for your husband, respond to what he needs. और उसके प्रति पहला स्थान देना, उसको क्या उम्मीद है उसके अनुसार करना। Okay? ठीक है। All right. The second one is to submit. दूसरा है समर्पण करना। So what is submission? समर्पण का मतलब क्या है? It is to yield your support and recognize your husband as someone who God has placed above you. और उसकी ओर समर्पण भावना के साथ रहना और उसको समर्थन करना कि परमेश्वर ने उसको जिस प्रकार से बनाए रखा है। So when you submit to your husband, you are being obedient to what God has instructed. और जब आप समर्पण के साथ रहते हैं तो आप जो है
you are being obedient to what God has instructed. और परमेश्वर ने जो निर्देश दिया है उसको आप आज्ञा कर रहे हैं। It is only when you submit, are you allowing your husband to take on the role of a leader? और जब आप समर्पण करते हैं तभी आप उनको अनुमति देते हैं कि वो एक अगुवे का पद स्वीकार करें। Do you have two heads? क्या आपके पास दो सिर है? What happens if you have two heads? अगर दो सिर है तो क्या होगा? Not the boys, I'm asking the girls. लड़कों से नहीं पूछा जा रहा है, लड़कियों से पूछा जा रहा है। What happens if there are two heads? अगर आपके पास दो सिर हो तो क्या होगा? Chaos. Overthinking. अधिक सोचना, Okay. Confusion, quarrels, right? Chaos, yes. झगड़ा। So there can only be one head. एक ही सिर हो सकता है। And your role is not to be the head. Your role is to be the friend, the role to be the supporter. आपका भूमिका जो है सिर होना नहीं है, आपका भूमिका है उसको समर्थन देना या मित्र बनना। Now, submission does not mean you are lesser than your husband. समर्पण करना उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है उससे नीचे हो। Or it does not mean that you will lose your identity or the person you are. और उसका समर्पण का मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी पहचान खो दोगे। Neither does it mean that you have to blindly do everything that he says, even if it is for your harassment. और उसका समर्पण का ये भी मतलब नहीं है कि वो जो कुछ कहे अंधे होकर करते जाओ, वो चाहे आपका दुरुपयोग क्यों ना हो। So you submit to him as unto the Lord. और आप अपने आप को पति के प्रति समर्पण करो जिस प्रकार से परमेश्वर है। Okay? The third one is to respect. तीसरा है आदर करना। So you respect by not just your words, but even in your thoughts and even in your mind, you respect your husband. और सिर्फ अपने बातों के द्वारा नहीं, अपने हृदय में और अपने मन में भी उसको आदर देना। You respect him by showing your admiration or your appreciation for your husband. और उसको प्रशंसा करते हुए और उसको चाहने का भावना दिखाते हुए आप उसको आदर देते हैं। You also respect him by helping him with whatever needs that he may have. और जो कुछ उसकी जरूरत है उसके साथ उसको करते हुए उसका आदर करना। And the last one is to help. Help means to support or assist your husband. आखिरी है सहायता, कि उसको समर्थन करना या उसकी जरूरतों में सहायता करना। Okay, ladies, so let's repeat those four roles. बहने जो है, स्त्रियां जो हैं अपने वो चार भूमिकाओं को दोहराएंगे: प्रेम, समर्पण, आदर, सहायक। और एक बार। एक और बार। भूल मत जाना। Okay. All right. Now let's quickly go to understand that as ministry leaders, that God does have certain instructions for those of us who are ministry leaders. और एक परमेश्वर के अगुवाई में होने के नाते परमेश्वर जो है कुछ निर्देश देता है कि हम जब सेवकाई में हो। So and you will find this in 1 Timothy and Titus. We're not going to get into the details of the reference, but we will take just the main points. और वो जो है आपको पहला तिमुथियुस और तीतुस में मिलेगा, उसको गहराई से नहीं देखेंगे, लेकिन उसको जस्ट छू के निकलेंगे। Okay, so what are as a ministry leader, those of us who are in ministry, what is as a husband, what is your role and responsibility? You should have only one wife.
और आप जो सेवकाई में है, पति लोग जो आदमी लोग जो सेवकाई में है, आप पति होने के नाते आपका जिम्मेवारी क्या है? पहला, एक ही पत्नी होना चाहिए। Okay. ठीक है। Second one is you need to be self-controlled and sober. स्वयं नियंत्रित होना चाहिए और शांत मनोभावना रखने वाले होने चाहिए। The sober also means that you should not be intoxicated with wine. और सहज होना मतलब उसका ये नहीं है कि आप जो है शराब पीकर मतवाले हो जाएं। Okay, you must welcome other people in your home. और आपके घर में दूसरों का स्वागत करना है। You should not be a violent and an angry man. और आप जो है क्रोधी और घात पहुंचाने वाले व्यक्ति नहीं होना है। But you should be gentle and peaceful. और आप समाधान लाने वाले और शांत होने चाहिए। You shouldn't be a lover of money. और आप जो है धन संपत्ति का प्रेमी या लोभी नहीं होना है। You should learn to manage your family well. और आपके परिवार के धन संपत्ति को उचित रीति से संभालना सीखना है। To bring your children up with respect. और सम्मान के साथ, आदर के साथ अपने बच्चों को बढ़ाना। To take care of members of your family. और अपने घर के सदस्यों का ध्यान रखना। To not be arrogant. और जो है अहंकारी ना होना। And to ensure that you bring up the children in the Lord. और ये ध्यान देना कि अपने बच्चों को परमेश्वर के अनुसार बढ़ाना। Okay, for the wife, for ministry leaders, if you are a ministry leader, what is your responsibility as a wife? एक पत्नी के नाते अगर आप परमेश्वर की सेवकाई में है तो आपकी क्या जिम्मेवारियां हैं? You should be of good character and not gossip about other people. आपका चरित्र जो है एक उत्तम चरित्र होना चाहिए और एक दूसरे के बारे में वार्तालाप नहीं करना है। You should be honest in everything. और आप जो है सही सब बातों में सच्चे होना है। Love your own husband and your own children. और अपने खुद के पति को और बच्चों को प्रेम करें। Be pure. और शुद्ध रहें। Be a good housewife. Take care of the house. और अपने घर का उचित रीति से देखभाल करें। And also submit to your own husband. और अपने निजी पति के अधीन रहें या समर्पित रहें। Okay? ठीक है। Another role in marriage for both the husband and wife is to be able to have a fulfilling sexual life. और दूसरा जो भूमिका है जो एक पति और पत्नी का है जो पारिवारिक जीवन में है वो है यौन संबंध का आनंद उठाना। We will talk about this more in chapter 8. 8वें पाठ में इसके बारे में और हम सीखेंगे। Okay, there is one a portion of the Bible that talks about the virtuous woman. और एक परमेश्वर के वचन में एक भाग है जहां पर एक भली स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। And lot of men want a Proverbs 31 wife. और कई आदमी लोग हैं जिनको नीति वचन 31 में जो स्त्री के बारे में कहा है उसके अनुसार वाली स्त्री मिल जाए। Is that right? क्या वो सही है? What happened to the boys? I think they do not read 31. How many have read Proverbs 31? कितनों में आप में से कितनों ने नीति वचन 31वां अध्याय पढ़ा है? What does it say? उसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है? भली पत्नी, उत्तम पत्नी, श्रेष्ठ पत्नी कौन प्राप्त कर सकता है? Yes? Okay. But you should also remember लेकिन आपको एक और बात याद रखना है that Proverbs, that it talks about a Proverbs 31 husband also. और उसमें एक 31वें नीति वचन 31 का एक किस प्रकार का एक पति होना है वो भी लिखा हुआ है उधर। So shall we open to Proverbs 31? क्या नीति वचन 31 की ओर हम अपना ध्यान ले जाएंगे? Okay, I want the boys to read this, okay?
मैं पुरुषों से चाहती हूँ, लड़कों से चाहती हूँ कि ये भाग पढ़ें जो बोला जाए। Proverbs 31 verse 11. 11 माइक यहाँ ऑन कर लें। 11 नीति वचन 31:11। और उसे लाभ की घटी नहीं होती। हाँ, और उससे लाभ की घटी नहीं होती। In English, her husband puts Her his husband puts her confidence. confidence and he will बाइबल से never पढ़ें be क्या? poor. That is what translation. Mistakes, no? So can you just read that out? उसमें इंग्लिश का अगर अनुवाद किया जाए तो हाँ, वो पति वैसा है जो उस स्त्री पर अपना आत्मविश्वास रखता है। So the husband puts confidence in his wife. और वो पति ऐसा होता है जो अपनी स्त्री पर आत्मविश्वास रखता है। Verse 23, it says, her husband is well known. और उसमें लिखा हुआ है वो स्त्री का पति लोगों के बीच में जानकारी, वेल नोन, जब Well उसका known. पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मानित, सम्मान। जान पहचान वाला हो। Okay. अच्छी जान पहचान। Verse 28 says, her husband praises her. और उसके बाद उसमें Verse 28. 28 उसमें 28 में लिखा है कि वो पति जो है अपनी स्त्री का प्रशंसा करता है। And verse 31, he gives her credit and gives her respect. और 31 में लिखा है वो उसको सम्मान देता है और प्रशंसा करता है। So if you want a Proverbs 31 wife, you should be a Proverbs 31 husband. अगर आपको इच्छा है कि नीति वचन 31 के अनुसार कही हुई स्त्री आपको पाना है तो आपको जो है 31वें नीति वचन में कहे हुए पति के समान बनना है। Amen. Amen. Okay. ठीक है, All right. Okay. Let's have a 10-minute break. We'll come back. 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। 3:05 को हम लोग वापस आएंगे।